Good morning, students. Now, today lecture number is 47 and today's date is 30th June 2020. Now, in your last lecture, we have seen illustration number 10. Now, today we discuss illustration number 11. This is on page number 46. Now, you have to keep your textbook with you. आपको अपनी textbook अपने साथ रखनी है और मेरे साथ ट्रांजेक्शन भी रीड करना है. उसके बाद मैं जब एक्सप्लेन करूंगा तब आपको समझना है. Okay? So, we start our illustration number 11. Now it is on page number 46. Now it is first transaction. Now before this, you know, this is debit effect and this is credit effect. Now when there is a debit effect and when there is a credit effect, it depends on rules of account. Rules of account means personal, real and nominal. So whenever person is benefit receiver, then his account is debited, and when person is benefit giver, his account is credited. Whenever goods and assets comes in, it is debited and we write down in this column. And whenever goods and assets goes out from business, there is a credit effect and we write down in this column. And when it is expenses and loss, then it has debit effect, it is recorded here in this column. And when it is incomes and gains, then it has credit effect and is recorded here. Now you have to read transaction and you have to determine name of accounts, which accounts are there, after that which type of accounts are there, and after that on the basis of rules of account you have to determine debit effect and credit effect. So our first transaction, what is that? Commence business with introduction of capital of rupees 40,000. Now remember, whenever business is commenced, so who start business? Owner. So we will introduce capital, owner. So owner is what? Person, and person comes under which account? Personal account. And what is the rule of personal account? Debit the receiver, credit the giver. And remember, whenever owner of business gives something to business, it is recorded in which account? Capital account. So which account is affected? Capital account. One account is capital. And what is given? Cash. What businessman will give to business? Cash. Here nothing is mentioned. In which form capital is given. So you have to understood it is always in cash. So second account is of cash. Now when businessman gives cash to the business, cash comes in or out? It comes in. And cash is what? Assets of the business. And whenever assets comes in, it is always debited. And इसकी इफेक्ट क्या होगी? Debit. So transaction number 1, कौन सी इफेक्ट आएगी डेबिट में? सो डेबिट कैश अकाउंट. एंड रिमेंबर, व्हेनेवर वी स्टार्ट बिजनेस, आपको एज अ ट्रांजेक्शन दिया है कॉमेंस बिजनेस, स्टार्ट बिजनेस, कैपिटल अकाउंट ही आएगा. एंड कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज credited. Why credited? Because owner of business gives capital to the business, and whenever any person is giver, his account is always credited. So which account credited? Credit कैपिटल अकाउंट. एंड एज मैंने आपको पहले ही बताया, कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड. क्लियर? सो ट्रांजेक्शन नंबर 1 इज ओवर. नाउ आफ्टर दिस सेकंड ट्रांजेक्शन, व्हाट इज ट्रांजेक्शन नंबर 2? सो सेकंड और ट्रांजेक्शन इज व्हाट? लोन ऑब्टेन ऑफ रुपीज 60,000 फ्रॉम रमनिक. यानी हमने रमनिक से लोन लिया है. अब जनरली हम लोन में लेते क्या है? सो वी आर टेकिंग व्हाट? कैश. हम जब भी लोन की बात करते हैं हम लोन में लेते क्या है? कैश. नाउ रिमेंबर, व्हेनेवर वी टेक लोन फ्रॉम एनी पर्सन, सो कैश कम्स इन और आउट? डेफिनेटली कैश कम्स इन. एंड कैश इज व्हाट? assets. And whenever assets comes in, what? It is always debited. So here one account, that is what? Cash account. So cash account will be debited. So debit effect और कौन सा account? Cash, because we have taken loan and we take always loan in form of cash. Now from whom we have taken loan? तो जनरली हम पर्सन से लोन लेते हैं. वो पर्सन चाहे नेचुरल पर्सन हो या आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल मींस बैंक. अगर हमने बैंक से लोन लिया तो क्या होगा? आर्टिफिशियल पर्सन. और किसी पर्सन से लिया तो क्या होगा? नेचुरल पर्सन. लेकिन कोई पर्सन है आर्टिफिशियल और नेचुरल, कौन से अकाउंट में जाएगा?
पर्सनल अकाउंट में जाएगा। उसका रूल्स क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब हम जब किसी से लोन लेते हैं तो वो क्या होगा? रिसीवर और गिवर, यू ऑलवेज गिवर, क्योंकि वो लोग को लोन देता है। तो गिवर का अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट। तो यहाँ किससे हमने लोन लिया है? क्रेडिट करना है, लेकिन किसका अकाउंट क्रेडिट करना है? जिससे हमने लोन लिया है। किससे लिया हमने लोन? रमनिक। तो किसका अकाउंट आएगा? रमनिक, because Ramnik is what? Giver. Ramnik is giver. That's why Ramnik account is credited according to personal account rules, and cash comes in. That is why cash account debited according to real account rules. So in this way we have given effect of second transaction. And here is dash. जिसमें कोई इफेक्ट नहीं, इसमें कोई करना है dash. Now transaction number 3. What is that? रुपीज 20,000 डिपोजिटेड विथ यूनियन बैंक एंड ओपन अकाउंट, यानी हमने यूनियन बैंक में अकाउंट ओपन किया है और उसके लिए हमने क्या किया है? कैश डिपॉजिट किया है। अब सीधी बात है, अगर हम बैंक में अकाउंट ओपन करेंगे और बैंक में कैश डिपॉजिट करेंगे तो कैश कम्स इन और आउट, तो कैश गोज आउट, क्योंकि बैंक में पैसा देते हैं। तो एक अकाउंट कौन सा आएगा? कैश। और कैश क्या होगी? गोज आउट। और जब भी बिजनेस से कैश गोज आउट होती है ना, इट इज ऑलवेज क्रेडिटेड। तो कहां पे आएगा? यहाँ पे, क्योंकि कैश क्या है? असेट्स। असेट्स गोज आउट, तो क्रेडिट इफेक्ट। तो डेबिट इफेक्ट में क्या आएगा? तो दूसरा अकाउंट किसका आएगा? हमने कहां पे पैसा डिपॉजिट किया? बैंक में। कौन सी बैंक में? यूनियन बैंक। तो कौन सा अकाउंट आएगा? यूनियन बैंक अकाउंट। अब बैंक कौन है? पर्सन। कौन सी पर्सन? आर्टिफिशियल पर्सन। अब हम जब बैंक में पैसा डिपॉजिट करेंगे तो बैंक क्या करेगा? रिसीव और गिव, तो बैंक विल बी रिसीवर। और अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट, पर्सन का अकाउंट क्या होता है जब वो रिसीव करता है? डेबिट। तो यहाँ पे इफेक्ट कौन सी आएगी? डेबिट इफेक्ट, यूनियन बैंक, यूनियन बैंक अकाउंट। और दूसरा क्या हो रहा है? कैश गोज आउट। तो जब भी बिजनेस से कैश गोज आउट, इट इज ऑलवेज क्रेडिटेड। और कौन सा अकाउंट आएगा? कैश अकाउंट। और कैश क्या है? वन काइंड ऑफ असेट्स, एंड व्हेनेवर असेट्स गोज आउट, इट इज ऑलवेज क्रेडिटेड। और आपको मैंने पहले ही बताया है, जब भी बिजनेस में कैश कम्स इन होता है क्या करना है? डेबिट करना है। और जब भी बिजनेस से कैश क्या होता है? गोज आउट होता है, तो क्या करना है? क्रेडिट करना है। आपको समझ में आना चाहिए अभी। उसके बाद है फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में क्या है? ब्रोकरेज रिसीव्ड ऑफ रुपीज 4,000। अब मैंने आपको पहले समझाया था कि जब भी हम रिसीव्ड वर्ड होता है तो क्या आंसर ट्रांजेक्शन होता है? इनकम का ट्रांजेक्शन होता है। और इनकम एंड एक्सपेंस का ट्रांजेक्शन ऑलवेज किस में होता है? कैश ट्रांजेक्शन होता है। तो इसमें कैश अकाउंट तो है, कैश अकाउंट आएगा। दूसरा कौन सी इनकम हमको बोली है? ब्रोकरेज। तो दूसरा कौन सा अकाउंट आएगा? ब्रोकरेज अकाउंट आएगा। यानी दो अकाउंट डिसाइड हो गए, एक कैश अकाउंट और दूसरा ब्रोकरेज अकाउंट। अब जब हमको इनकम होती है तो कैश इन होता है क्या आउट होता है? आपको समझना है। तो कैश कम्स इन, एंड व्हेनेवर कैश कम्स इन, इट इज ऑलवेज डेबिटेड। इन व्हिच कॉलम? सेकंड कॉलम, बिकॉज़ कैश इज व्हाट? असेट्स। तो यहां पे क्या आएगा? डेबिट। कौन सा अकाउंट? कैश अकाउंट। बराबर। अब कौन सी इनकम हो रही है हमको? ब्रोकरेज। तो इनकम कहां लिखना है? यहां को देखना है इनकम कहां लिखा है। तो ये रहा, इनकम्स एंड गेन। तो कौन सा अकाउंट ऐड होगा? इनकम का। कौन सी इनकम आपको हो रही है? ब्रोकरेज। तो कौन सा अकाउंट? ब्रोकरेज अकाउंट। जो आपको इनकम होती है उसका अकाउंट लिखना है। ब्रोकरेज है तो ब्रोकरेज, कमीशन तो कमीशन, इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट, रेंट है तो रेंट, और डिविडेंड है तो डिविडेंड। हमको जो ट्रांजेक्शन में दिया है वो अकाउंट लिखना है। यहाँ पे कौन सी इनकम दी है हमको? ब्रोकरेज की। तो कौन सा अकाउंट आएगा? ब्रोकरेज अकाउंट। बराबर। तो ये हो गया फोर्थ नंबर का ट्रांजेक्शन। उसके बाद है फिफ्थ नंबर का। तो फिफ्थ नंबर में क्या है? गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम बचू भाई। तो पहले आपको ये देखना है ये कैश ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था, जब भी किसी पर्सन का नाम हो तो बचू भाई इज व्हाट? इज द नेम ऑफ पर्सन। तो क्या होता है? वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और जब भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है तो उस पर्सन का अकाउंट आता है जिसका हमको नाम दिया होता है। तो एक अकाउंट कौन सा आएगा? बच्चू भाई। अब दूसरा अकाउंट कौन सा आएगा?
तो वो भी मैंने आपको बोला था, जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं कौन सा अकाउंट आएगा, परचेज अकाउंट आएगा। तो दोनों अकाउंट डिसाइड हो गए, एक परचेज अकाउंट और दूसरा बचू भाई। अब कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, परचेज अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड। अब कैसे, तो परचेज गुड्स, तो गुड्स का अकाउंट किसमें आएगा, रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट का रूल्स क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हम गुड्स परचेज करेंगे तो गुड्स इन होगा क्या आउट, गुड्स विल कम्स इन, तो क्या होगा डेबिट, और गुड्स इसलिए कहां आएगा यहाँ पे, तो यहाँ क्या लिखना है डेबिट। कौन सा अकाउंट, परचेज अकाउंट, क्योंकि हमने क्या किया, गुड्स परचेज किया है। क्लियर। अब हम जब बचू भाई से गुड्स परचेज करेंगे तो बचू भाई कौन है, पर्सन, तो कौन से अकाउंट में जाएंगे, पर्सनल अकाउंट में जाएंगे। उसका रूल्स क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो बचू भाई से हम गुड्स परचेज करेंगे तो बचू भाई कौन होगा, रिसीवर और गिवर। तो बचू भाई इज व्हाट, गिवर, और गिवर का अकाउंट क्या होता है अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट। तो यहाँ क्या लिखना है, क्रेडिट, किसका अकाउंट, बचू भाई। तो बच्चू भाई अकाउंट इज क्रेडिटेड। जिसमें कोई एंट्री नहीं है वहां पर ऐसे डैश कर देना है ना। इसका मतलब क्या है, वहां पे कोई इफेक्ट है नहीं। और मैंने आपको पहले ही बताया था, एक ट्रांजैक्शन में सिर्फ दो इफेक्ट होती है, एक डेबिट और दूसरी क्रेडिट। हमने वही किया है, देखो हर एक ट्रांजैक्शन में दो इफेक्ट है, एक डेबिट और क्रेडिट। कोई ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं होगा जिसमें दोनों क्रेडिट होगी या दोनों डेबिट होगी। अगर होगी तो रिकॉर्ड होगा नहीं, वो क्या होगा, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है ना, उसको हम रिकॉर्ड करते नहीं है। तो इस तरह से आपको हर एक ट्रांजैक्शन में दो दो इफेक्ट रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, तो हमने कितने ट्रांजैक्शन देखे अभी, 5 ट्रांजैक्शन अभी देख लिए। ओके, नाउ ट्रांजैक्शन नंबर 6। नाउ व्हाट इज ट्रांजैक्शन नंबर 6? सो गुड्स ऑफ ₹20,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट टू लक्ष्मी। यहाँ पे आपको बोल दिया है वी हैव सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, तो एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्लियर। जब भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है किसी पर्सन का नाम आएगा, तो यहाँ पे किसका नाम आएगा, लक्ष्मी, तो एक लक्ष्मी अकाउंट आएगा। दूसरा क्या हमने किया है, वी हैव सोल्ड गुड्स। अब जब भी गुड्स सोल्ड करते हैं ना तो कौन सा अकाउंट आएगा, सेल्स अकाउंट आएगा, आपको याद रखना है। और सेल्स अकाउंट इज ऑलवेज व्हाट, क्रेडिटेड। सेल्स अकाउंट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्यों, तो सेल्स अकाउंट इज अकाउंट ऑफ गुड्स एंड गुड्स अकाउंट्स कम्स अंडर रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल्स क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी हम जब गुड्स बेचते हैं ना तो गुड्स क्या होगा, गोज आउट, तो सेल्स अकाउंट क्या होगा उसके हिसाब से क्रेडिट होगा। तो एक इफेक्ट कहां आएगा, क्रेडिट, यहां पे कौन सा अकाउंट, सेल्स अकाउंट। अब एक इफेक्ट क्रेडिट है तो दूसरी क्या होगी, डेबिट, तो कौन सी, तो हमने किसको गुड्स सोल्ड किया, लक्ष्मी को। अब लक्ष्मी को हम गुड्स सोल्ड करेंगे तो लक्ष्मी क्या करेगी, रिसीव के गिव, लक्ष्मी विल रिसीव द गुड्स। तो whenever any person receive benefit from business, his or her account what, debited। तो बेनिफिट रिसीवर पर्सन, तो क्या होगा उसका अकाउंट, डेबिट। कौन रिसीव करता है, लक्ष्मी, तो कौन सा अकाउंट आएगा, लक्ष्मी अकाउंट। क्लियर। तो one account is debit and second account is credit. Now remember, whenever we sold goods on credit, always sales account is credited and the person to whom we are selling goods on credit, his or her account will be debited। यहाँ पे सिर्फ नाम चेंज होगा। अगर मान लो यहाँ मैंने लक्ष्मी जगह कैसा लिख दिया है, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹20,000 टू महेंद्र, तो किसका अकाउंट आएगा, महेंद्र अकाउंट आएगा। लेकिन यहाँ तो कौन सा अकाउंट आएगा, सेल्स अकाउंट ही आएगा। एंड सेल्स अकाउंट इज ऑलवेज credited because when we sold goods, goods goes out from the business and whenever goods goes from business, it is always credited according to real account। clear। तो ये हो गया आपका ट्रांजैक्शन नंबर 6। नाउ ट्रांजैक्शन नंबर 7। so what is transaction number 7? so shop rent paid ₹5,000। अब मैंने आपको पहले भी समझाया, जब भी पेड बढ़ाता है it is transaction of expense and it is always in cash and whenever transaction is cash transaction, one account must be of cash, यानी एक अकाउंट किसका आएगा, कैश। अब पेड ट्रांजैक्शन किसका होता है, एक्सपेंस का। तो हमने कौन सा एक्सपेंस किया, शॉप रेंट, हमने अपना शॉप रेंट पे किया है, तो एक अकाउंट आएगा शॉप रेंट और दूसरा आएगा कैश अकाउंट।
अब हम जब स्वैप रेंट देंगे तो कैश कम्स इन और गोज आउट, तो कैश गोज आउट, तो कैश गोज आउट तो क्या होगा क्रेडिट। और स्वैप रेंट क्या है बिजनेस का एक्सपेंस, और एक्सपेंस के अकाउंट क्या होते हैं डेबिट, यहाँ लिखा है देखो एक्सपेंस तो क्या होगा डेबिट, तो यहाँ पे आएगा डेबिट। लेकिन कौन सा एक्सपेंस किया आपने शॉप रेंट, तो क्या लिखना है यहाँ पे शॉप रेंट अकाउंट, जो आप एक्सपेंस करते हो वही अकाउंट आपको लिखना है, आपने जो एक्सपेंस किया ना वही लिखना है। शॉप रेंट तो शॉप रेंट, सैलरी तो सैलरी, वेजेस तो वेजेस, डिस्काउंट इंटरेस्ट वॉट एवर एक्सपेंस, जो आपने एक्सपेंस किया वो अकाउंट यहाँ पे लिखना है। लेकिन आपको पता कैसे चला कि एक्सपेंस का अकाउंट है, कौन सा पेपर है पेड, जब भी पेड बढ़ाता है इट इज एक्सपेंस ट्रांजेक्शन। और कैश गोज आउट तो क्या होगा क्रेडिट, क्यों मैंने यहाँ पे लिखा बिकॉज कैश इज व्हाट असेट्स एंड व्हेनेवर असेट्स गोज आउट इट इज ऑलवेज क्रेडिट, तो क्रेडिट व्हाट कैश अकाउंट, क्योंकि कैश क्या होगा बिजनेस से गोज आउट, जब भी हम एक्सपेंस करते हैं कैश गोज आउट फ्रॉम दी बिजनेस, आपको याद रखना है ठीक है। नाउ ट्रांजेक्शन नंबर 8 क्या कहता है 8 नंबर, ₹200 पेड टू रामाकांत फॉर कैरेज। अब मैंने आपको ऐसा समझाया था कि जब भी ट्रांजेक्शन में किसी पर्सन का नाम आता है ना तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है, लेकिन एक बात याद रखना जब भी ये एक्सपेंस का ट्रांजेक्शन ना और हम किसी पर्सन को एक्सपेंस देते हैं ना तो एक्सपेंस का ट्रांजेक्शन है एंड इट इज ऑलवेज इन कैश, इट इज ऑलवेज इन कैश। अगर हम गुड्स परचेस करते हैं या गुड्स सोल्ड करते हैं और किसी पर्सन का नाम दिया है तो ये क्या होता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं एक्सपेंस पे करते हैं, हमको कैसे पता चला हम एक्सपेंस करते हैं, तो पीछे ट्रांजेक्शन रीड कीजिए क्या लिखा है ₹200 पेड, जब भी पेड बढ़ाता है इट इज व्हाट ट्रांजेक्शन ऑफ एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस हमने किया है तो कैरेज। अब कैरेज क्या है मैंने आपको पहले भी समझा दिया है ना, जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं या जब भी हम बिजनेस में गुड्स सोल्ड करते हैं उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन देना पड़ता है और उसके जो पैसा देते हैं उसको क्या बोलते हैं कैरेज, कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड इज परचेज एक्सपेंस एंड कैरेज आउटवर्ड इज सेल्स एक्सपेंस, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कैरेज दिया है क्लियर, तो कैरेज इज व्हाट एक्सपेंस, और एक्सपेंस के ट्रांजेक्शन ऑलवेज किस में होते हैं कैश, तो एक तो कैश अकाउंट आएगा और दूसरा कौन सा एक्सपेंस है कैरेज, तो कौन सा अकाउंट आएगा कैरेज, तो एक्सपेंस कहाँ लिखेंगे हम यहाँ पे, और एक्सपेंस अकाउंट क्या होगा ऑलवेज डेबिट, तो डेबिट कैरेज अकाउंट, डेबिट कैरेज अकाउंट एंड इट इज ऑलवेज इन कैश, तो कैश क्या होगा आउट, तो क्या होगा क्रेडिट। आपको याद रखना है जब भी हम कैश देते हैं ना बिजनेस में किसी भी रीजन से कैश बिजनेस में जाएगा तो ऑलवेज क्या होगा क्रेडिट, बिकॉज कैश इज व्हाट असेट्स ऑफ द बिजनेस and whenever assets goes from business according to real account it is what always credited. Okay, now transaction number 9, what is 9 number, ₹500 becomes receivable for interest from Kundan, यानी receivable, remember receivable is what it is our assets, it is our assets, यानी हम कुंदन से 500 रुपया इंटरेस्ट रिसीव करा निकलता है ना, ₹500 becomes receivable for interest from Kundan, so it is our income, it is our income। तो पहले कौन आएगा पर्सन, कौन आएगा पर्सन, कौन सा पर्सन कुंदन, तो कुंदन का अकाउंट क्या होगा डेबिट, तो डेबिट टू कुंदन अकाउंट, डेबिट टू कुंदन अकाउंट, और ये हमारा क्या है इनकम, अभी हमें कुंदन से इनकम लेना निकल रहा है ना, तो हमारा क्या हो गया इनकम, क्योंकि हम कुंदन से इंटरेस्ट मांगते हैं तो हमारा क्या हो वो इनकम होगा, तो क्या होगा वो क्रेडिट, सो क्रेडिट इंटरेस्ट अकाउंट, क्रेडिट इंटरेस्ट अकाउंट, कौन सी इनकम मांगते हैं उससे इंटरेस्ट की। अब कुंदन का अकाउंट डेबिट क्यों किया आपको वो क्वेश्चन होगा, तो हम कुंदन से इंटरेस्ट कब मांगते हैं जब कुंदन ने हमसे कोई बेनिफिट लिया होगा, तो कुंदन कौन हुआ बेनिफिट रिसीवर, और बेनिफिट रिसीवर का अकाउंट ऑलवेज क्या होता है डेबिट अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट रूल्स, तो कुंदन अकाउंट क्या होगा डेबिट, और ये इंटरेस्ट क्या है हमारे लिए इनकम है,
तो इनकम के अकाउंट क्या होता है, ऑलवेज क्रेडिट। किसके हिसाब से, नॉमिनल अकाउंट के रूल्स के हिसाब से। क्या है नॉमिनल अकाउंट का रूल्स, डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम्स एंड गेन। सो इन दिस वे हियर कुंदन अकाउंट इज डेबिटेड and interest account is credited. Okay, now 10 number. So what is 10 number transaction? सैलरी पेड टू दिनेश रुपीज 1200। अभी मैंने आपको पहले बताया था, जब भी एक्सपेंस का इनकम का ट्रांजेक्शन हो ना, तो किसी पर्सन का नाम दिया है ना, तो भी आपको ऐसा समझना नहीं है क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। क्यों कि हम एक्सपेंस एंड इनकम के ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं, कैश में करते हैं। तो हमने क्या किया भाई, सैलरी पेड टू दिनेश, हमने दिनेश को सैलरी दिया है, बराबर। तो सैलरी इज व्हाट, बिजनेस एक्सपेंस, सो इट इज ऑलवेज डेबिटेड अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट रूल्स। और हम सैलरी कैसे पे करेंगे, कैश में। तो कैश क्या होगा, गोज आउट, तो कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। तो एक इफेक्ट क्या आएगा यहाँ पे, डेबिट सैलरी, कौन सा अकाउंट, सैलरी अकाउंट। और दूसरी फिर क्या आएगी, क्रेडिट, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, कैश अकाउंट। फिर क्या होगा, बिजनेस से कैश गोज आउट। आपको इतना याद रखना है, जब भी हम एक्सपेंस करते हैं ना, कैश अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड, और जो एक्सपेंस करते हो ना, वो अकाउंट क्या होगा, डेबिट। जब भी आप इनकम करोगे ना, तो कैश अकाउंट इज ऑलवेज डेबिट, क्योंकि कैश क्या होगा, केम्स इन, कैश कम्स इन, और जो इनकम है वो अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। क्लियर। अगर पर्सन है, अगर पर्सन रिसीवर है तो उसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट। अगर पर्सन गिवर है तो उसका अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। अगर गुड्स एंड असेट्स कम्स इन तो क्या होगा, डेबिट, और गुड्स एंड असेट्स गोज आउट तो क्या होगा, क्रेडिट। आपको इतना समझना है कि कौन से टाइप का अकाउंट है ना, पर्सन का है, गुड्स का है, असेट्स का है, इनकम्स का है, के एक्सपेंस का है, उसके हिसाब से आपको डेबिट एंड क्रेडिट में डिवाइड कर देना है। क्लियर। अगर गुड्स एंड असेट्स कम्स इन द डेबिट, एक्सपेंस एंड लॉस इन द डेबिट, पर्सन इज रिसीवर देन डेबिट, पर्सन इज गिवर देन क्रेडिट, गुड्स एंड असेट्स गोज आउट देन क्रेडिट, एंड इनकम्स एंड गेन है तो क्रेडिट। तो इस तरह से हमें क्या करना है, डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट देना है। तो आज हमने 10 ट्रांजैक्शन देखे, टोटल 20 ट्रांजैक्शन आर देयर। इस इलस्ट्रेशन में 20 ट्रांजैक्शन है, हमने 10 देख लिए, बाकी के 10 हम कल देखेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।